جو ظالم مسجدوں کو مٹانے پہ لگے ہیں، جو ظالم مدارس کو ختم کرنے پہ لگے ہیں، جو ظالم مکاتب کو ختم کرنے پہ لگے ہیں، اللہ رب العالمین اس لیے بار بار قرآن مقدس کے اندر اعلان کرتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، مساجد کو اگر کوئی انسان برباد کرے، ہلاک کرے، مٹانے کی کوشش کرے، اس سے بڑا دنیا کے اندر گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، ایک انسان کو اس لیے مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اس لیے کہ وہ ایک اللہ رب العالمین کو مانتا ہے، ایک پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، ایک اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، بار بار پکارتا ہے تو اللہ اللہ کہہ کر پکارتا ہے۔ اس لیے آج دوسرے لوگ آج ہماری مساجدوں کو مٹانے پہ لگے ہیں، آج مساجد کو ختم کرنے پر لگے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اے لوگوں، تم سارے لوگوں کو اس بات سے خبردار ہو جانا چاہیے کہ جس اللہ رب العالمین کے گھر کو تم مٹانے پہ لگے ہو، جس کے گھر کو تم توڑنے پر لگے ہو، وہ اللہ رب العالمین جس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، جب وہ اپنا بدلہ لینے پر اتر آتا ہے تو کسی بھی انسان کو دنیا کے اندر حالات معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج اگر ان ظالموں کی طرح ہم بھی ہو گئے، مساجد کے اندر اگر ہم داخل نہ ہوئے تو ہمارے مساجد کو ختم کر دیے جائیں گے، ہمارے مدارس و مکاتب کے نام و نشانات کو مٹا دیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا کسی بڑے بڑے انسانوں نے اس بات کی خبرگیری کی ہے، اس بات کا سندیش سنایا ہے، اے لوگوں تمہارے اوپر حالات یا وقت ایسے آ جائیں گے، تم آج مسجدوں کو ویران چھوڑ دیو، مسجدوں میں تم سجدہ ریز ہونے کو تیار نہیں ہو، لیکن جب کل تمہارا دل چاہے گا، تم ارادہ کرو گے کہ ہم دنوں رات مسجد میں پڑے رہے، تو یہ سارے لوگ تمہیں روک دیں گے، تم سجدہ ریز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے کورونا کا وہ وقت بھی آیا تھا جب ہم سارے لوگ مسجدوں کے سامنے سر کٹانے کو تیار تھے، سر جھکانے کو تیار تھے، لیکن اللہ رب العالمین اس لیے بار بار تمہیں چیخ چیخ کر پکار کر کہتا ہے اے لوگوں، مساجد کو بنانا تمہارا اگر کام ہے تو مسجدوں میں سجدہ ریز ہونا تمہارا کام ہے، ایک اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا تمہارا کام ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے الگ کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین بار بار چیخ چیخ کر پکار کر کہتا ہے، اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلواتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کی بشارت سناتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ آج ہم میں سے کتنے خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ اسی مسجد کے اندر اپنا دان لکھا کر جائیں گے، اس لیے کہ آئے ہیں ننگے ہاتھ پیر آئے ہیں، ننگے ہاتھ چلے جائیں گے، ننگے پیر چلے جائیں گے۔ جب ماں کے پیٹ سے چیخ کر رو کر آئے تھے، دنیا کو چیخو پکار کر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہم بے بس اور لاچار اتنے ہیں کہ ہمارے بچے جب ہمیں قبرستان پر چھوڑ کر جائیں گے، ہماری لاچاری اور مجبوری یہ ہو جائے گی کہ ہم اپنے بچوں، ہم اپنے رشتہ داروں کی جوتیوں کی آواز تو اپنے دونوں کانوں سے سنیں گے، ہم آواز ان کو نہیں سنا سکتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر انسانوں کی بے بسی، انسانوں کی لاچاری کو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، اے لوگو تمہاری بے بسی، تمہاری لاچاری یہ ہے، تمہارے پاس آج پیسے ہیں، تمہارے پاس گاڑیاں ہیں، تمہارے پاس بلڈنگیں ہیں، تو تم جو چاہو تم منمانی کر لو، لیکن اللہ رب العالمین بدلہ لینے پر آئے تو اللہ رب العالمین کی لاٹھی پر آواز نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے انسانوں تم سارے لوگ حقیر و ذلیل پانی سے پیدا کیے گئے ہو، اور تمہاری بے بسی اور لاچاری کا عالم یہ ہے کہ تم میں جب تمہارے وہ بچے جو دنیا میں تمہیں بہت پیار کرتے تھے، اگر تمہاری کوئی دقت و پریشانی ہوتی تو بچے وہ بیویاں جب تک تمہیں سکون نہ دلا سکتے تھے تب تک وہ روتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں ننگے پیر، ننگا بدن، ننگا جسم تمہیں قبرستان پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور لاچاری یہ ہے
जिन बच्चों की आवाज़ को सुनकर तुम दिनों रात तड़पा करते थे, आज वही बच्चे तुम्हें छोड़ कर जा रहे हैं। आज वही बच्चे तुम्हें कब्रिस्तान में अकेले कर दिए हैं। तुम्हें चीखो पुकार तुम कितना करते रहो, वो सुनने को तैयार नहीं होंगे, वो देखने को तैयार नहीं होंगे। कितनी बेबसी है, कितनी लाचारी है हमारे अंदर। आज जिस्म में खून है, आज बॉडी के अंदर गर्मी है, ताकत है, तो दुनिया को हम अपनी मुट्ठी में समझते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारी बेबसी और तुम्हारी लाचारी ये है कि जिस दिन तुम्हारे बीवी बच्चे जो तुम्हें दुनिया में बहुत अजीज थे, बहुत प्यार किया करते थे, जब तुम्हें कब्रिस्तान में अकेले छोड़कर चले जाएंगे, तुम्हें तन्हाई में छोड़कर चले जाएंगे, तुम्हें देखने वाला कोई ना होगा, तुम उनकी जूतियों की आवाज़ सुनोगे, उनकी बातों की आवाज़ तो सुन सकते हो, लेकिन तुम उनको नहीं सुना सकते हो। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, जब दुनिया में एक इंसान एक बंद कमरे में रहता है जिसके अंदर कोई लाइट नहीं होती है, कोई रोशनी नहीं होती है, इंसान एक बंद कमरे में रह नहीं सकता। आज गर्मी है, गर्मी इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, एसी के सामने बैठते हैं, कूलर के सामने बैठते हैं, फ्रिज के ठंडे पानी पीते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ लोगो, तुम दुनिया में अपने एतबार से तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे कि तुमने कभी गर्मी बर्दाश्त नहीं की, तुमने कभी ठंडी को बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन आज क्या हो गया है, आज कीड़े मकोड़े के घर में रहने के लिए तैयार हो गए हो। आज कौन सा दिन तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा है। मेरे भाइयों, आज उन नौजवान भाइयों को आज मैं एक बात का पैगाम देना चाहता हूँ, अपने जवानी को संभाल कर रखो, अपनी जवानी को दीवानी में ना लगाओ, अपने जवानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगा दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में अपनी जवानी को लुटा दो। मेरे भाइयों, कितने ऐसे नौजवान भाई हैं जो ये कहा करते थे कल से मस्जिद को जाकर आबाद करेंगे, कल से जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ा करेंगे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। जो सोचा करते थे अगले जुमे से नमाज पढ़ेंगे, अगले रमज़ान आएगा तो अच्छे से रोजे रखेंगे, लेकिन जिनको अपनी जवानी पर घमंड था, अपनी जवानी पर गुमान था, वो सारे लोग अपने माँ बाप को छोड़कर कब्रिस्तान में जाकर लेट गए हैं। आज वो माँ बाप जो अपने बच्चों के दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ़ हो जाए, माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चों को तुमने तकलीफ़ क्यों दिया, हमारे बच्चों को तकलीफ़ क्यों पहुँचाया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, जब तुम दुनिया के अंदर किसी इंसान से इतने प्यार किया करते थे, आज क्या हो गया है, आज कौन सी बेबसी तुम्हें आग पकड़ी है, आज कौन सी लाचारी और मजबूरी आ गई है कि तुम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए अल्लाह के रसूल सारे लोगों को ऐलान करते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। आज जन्नत में घर बनाने का बेहतरीन मौका है। इतने बड़े बड़े उलमा को आप हर दिन अपने गांव में नहीं ला सकते हैं, बड़े बड़े दूर दराज से आप उलमा को नहीं ला सकते, लेकिन आज वो ख़ास और मखसूस दिन को तैयार किया गया है, इतने बड़े पंडाल को लगाया गया है। आज कितने खुश नसीब ऐसे होंगे जो अपने गर्दन को जहन्नम की आग से आज़ाद करते हुए जन्नत में अपने आप का दाखिला करवा लेंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है, अल्लाह के रसूल अपने उम्मतों को खुशखबरी देते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। ऐ लोगो, जन्नत में अगर वाकई तुम अपना घर बनाना चाहते हो, एसी लगाना चाहते हो, कूलर लगाना चाहते हो, तो आज तुम्हें गर्मी बर्दाश्त करनी है और आज सबसे ज़्यादा तुम्हें दान देना है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के खातिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी की खातिर ये सारी चीज़ें होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे मकाम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम। ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से आज़ाद करा लो, अपने आप को जहन्नम की आग से महफूज कर लो। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, और अपने घर वाले को भी जहन्नम की आग से आज़ाद कर लो। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों को इस बात को ले आइए, मौलाना अब्दुल शकूर भोजपुरी को ले आइए, मौलाना अब्दुल्ला सलफी, मौलाना अब्दुल शकूर सलफी।
इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें चीखो पुकार कर कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, जो तुम अपने आप में दावा करते हो, अपने आप में सच्चे हो, अपने आप को ईमानदार साबित करना चाहते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें ईमान वालों को चीखता है, उन्हें ईमान वालों को बुलाता है कि आओ, तुम्हारे लिए मेले, तुम्हारे लिए जलसे सजाए गए हैं। कू अनफुसकुम, ताकि तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से आज़ाद करा लो, जहन्नम की आग से महफूज कर लो। इसलिए दुनिया की आग को जब हम और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, दुनिया की हल्की धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, एक इंसान को आज के डेट में धूप में खड़ा कर दिया जाए, इंसान 10 मिनट धूप में नहीं रह सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें बार बार चीख चीख कर कहते हैं, हमें ये बर्दाश्त नहीं होगा, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे नेकोकार बंदे, हमारे ईमानदार बंदे, जो दुनिया के अंदर अपने आप को ईमान वाले साबित किया करते थे, जो दुनिया के अंदर ये कहा करते थे, ऐ अल्लाह, ईमान रखते हैं तो तुझ पर रखते हैं, आखिरी नबी पर ईमान रखते हैं तो हम सारे लोग रखते हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। इसलिए कि दुनिया का दस्तूर ये है कि हमारी माएँ और बहनें जब घरों में खाना पकाती है, खाना बनाती है, तो उसमें लकड़ियों का इस्तेमाल करती है। बस औकात घरों में सिलेंडरों का इस्तेमाल होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया का दस्तूर बतलाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत का दस्तूर बतलाता है। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दस्तूर यहाँ पलट दिया है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसान और जिनी होंगे जो जहन्नम के आग के ईंधन होंगे। इसलिए ऐ लोगों, तुम कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी करो, कब्र में सोने से पहले कब्र में सोने की तैयारी करो, वरना जब एक रात ऐसी आती है कि हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हम गर्मी में सो नहीं सकते हैं, तो हम भी उसी तरीके से जहन्नम की आग में जल नहीं सकते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दस्तूर उलट दिया है। दुनिया में लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, लेकिन आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन लकड़ियों का नहीं बल्कि इंसानों का अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तेमाल करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप सारे लोगों से गुजारिश है कि आप सारे लोग अपने आप को उस अंधेरे घर की तैयारी करिए, उस कीड़े मकोड़े घर की तैयारी कीजिए, जहाँ की बेबसी और लाचारी का आलम यह होगा कि हमारी बीवी बच्चे छोड़कर आएंगे, हमारी बीवी बच्चे अपने आँख से एक दिन आधा घंटा आंसू तो बहाएंगे, लेकिन छोड़ कर आने के बाद फिर वो अपनी मस्ती में आ जाएंगे। हम भी अपने माँ बाप के साथ, अपने दादा के साथ, अपने नाना के साथ, अपने परदादा के साथ पूरी जिंदगी यही रीत रिवाज चलती आ रही है। हम दूसरों के साथ करते हैं, कल ये बच्चे हमारे साथ करेंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि कब्र में जाने से पहले कब्र में जाने की तैयारी करो, कब्र में सोने से पहले कब्र में सोने की तैयारी करो, वरना उस दिन सारे लोग आपको छोड़ कर आएंगे। और जिस कीड़े मकोड़े से डर लगता है, दुनिया में अगर एक इंसान ऊपर कीड़ा देख ले तो उस इंसान को नींद नहीं आती, उस इंसान उस कीड़े मकोड़े से भागता है। लेकिन जिसका घर ही कीड़ा मकोड़ा हो, जिस घरों के अंदर ही कीड़े मकोड़े रहते हों, वहाँ पर कहाँ से भाग सकते हैं। और हमारे सीनों के ऊपर इतनी मिट्टी दबा दिए जाते हैं कि हम तो उसको उठाने की दूर की बात, हम इधर से उधर टस से मस नहीं हो सकते, हम हिल नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आखिर में आप सारे लोगों से गुजारिश करेंगे कि आज वो दिन है, आज वो रात है कि आज कितने ऐसे लोग होंगे जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिनकी किस्मत में लिखा होता है कि फला इंसान जहन्नम की आग में जाएगा, लेकिन अपने आप को जहन्नम की आग से बदल कर जन्नत में अपने आप की रजिस्ट्री करवा लेगा, अपना एडमिशन जन्नत में करवा लेगा। इसलिए मेरे भाइयों, रात भी काफ़ी हो चुकी है, तकरीबन 12 बजने को है, लोग अपने घरों को भी जाएंगे। इसलिए घर में जाने से पहले, घर में सोने से पहले वो जो आखिरी घर है उस आखिरी घर की तैयारी कीजिए, वरना हम सारे लोग रोते रह जाएंगे लेकिन हमारी आवाज़ कोई सुन नहीं सकता। मेरे भाइयों, इसलिए आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं। बातें बहुत थी लेकिन उलमाए कराम की फहरिस्त लंबी फहरिस्त है, इसीलिए अपनी बात को बीच में रोकना पड़ा। इसलिए कि मजबूरी है
اس لیے کہ رات بھی چھوٹی ہے، اس لیے آپ سارے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے اس مسجد کو بنانے میں، اس مسجد کی زمین خریدنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے خود اس میں نماز پڑھنے جائیں، اپنے بیوی بچوں کی نماز کی تلقین کریں تاکہ خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیں اور اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دلا کر ہم سارے لوگ جنت میں داخل ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر ہم سارے لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔